Welcome to my channel, Civil Engineering Institute. Today we are going to discuss about the cross drainage work. First of all, we should know what is the meaning of cross drainage work. Actually, many times in an irrigation project, when canals may have to cross the natural drainage like river streams within command area, then in that case we have to provide the cross drainage work. That mean मान लीजिए कि किसी एक कैनल कहीं जगह से कहीं रिजर्वेयर से निकलता हुआ किसी एक एग्रीकल्चर फील्ड को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है. सो विद इन द वे ऑफ कैनल जिस वे से गुजरता हुआ जा रहा है, तो उसी वे के दौरान अगर बीच में कहीं रिवर आता है और स्ट्रीम्स आता है, देन द कैनल water should not mixed with the river or stream water. Instead of that, the canal water should be separated from the stream or river water. So the structure which is provided in order to separate or in order to cross the canal easily over the drainage or below the drainage, or we can say that easy flow of water of the canal over the drainage. So इसके लिए जो भी स्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करते हैं, that structure is known as the cross drainage work. So what is the necessity of the cross drainage work? Here I have already discussed. First of all, the cross drainage work is provided for the crossing of canal over the drainage and smooth running of the canal water with the design discharge and without intermixing with the drainage. Cross drainage work is provided. Okay. So second point, we can say that in order to divert and river or stream in its natural direction, cross drainage work is provided, and depending upon the site conditions, cross drainage work should be provided for the safe crossing of the canal. मान लीजिए कहीं जगह पर कैनल हाई लेवल पे है और रिवर जो है लो लेवल पर है, तो वहाँ पर कैनल को क्रॉस कराने के लिए ओवर दी रिवर हम लोगों को क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करना पड़ता है. और एक बात है, जिस डायरेक्शन में कैनल फ्लो करता है उस डायरेक्शन को हम कोई भी हैम्पर नहीं पहुंचाना चाहते, और जिस डायरेक्शन में वो फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में हम फ्लो करवाना चाहते हैं, और रिवर और स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में हम चाहते हैं कि वो भी फ्लो करे. तो किसी भी फ्लो का, किसी भी डायरेक्शन का हम चेंज ना करते हुए जो भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करके उस डायरेक्शन और उस फ्लो को हम कांस्टेंट रखते हैं, तो उसी स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क. और क्रॉस ड्रेनेज वर्क हमको इसीलिए भी चाहिए. ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क जनरली प्रोवाइडेड. एक्चुअली पहले हम लोगों को समझना होगा कि एक्चुअली क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या होता है, तो उसके बाद ही हम बता पाएंगे ये सब टाइप्स के बारे में. तो उससे पहले मैं फिर भी डिस्कशन कर देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, इरिगेशन व्हेन इरिगेशन कैनल पैसेस ओवर द ड्रेनेज, मतलब अगर कहीं पर रिवर है और रिवर के ऊपर से कैनाल गुजरता है तो उसी चीज़ को बोला जाता है एक्वेडक्ट, और साइफोन एक्वेडक्ट भी कभी कभार बोला जाता है. तो कब हम साइफोन एक्वेडक्ट बोलते हैं और कब एक्वेडक्ट बोलते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. और कभी कभार आपने देखा होगा कि रिवर के अंडर हम कैनाल को पास करते हैं और कैनाल इजीली अंडर रिवर फ्लो करता है. ठीक है, तो उस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनता है तो उसको बोला जाता है
super passage or siphon super passage. So when we are denoting the name super passage and siphon super passage, we will discuss. And now about the third type, the drainage and canal intersection each other of the same level. So in that case, two types of cross drainage work can be possible. मतलब canal और river both are in same level. The bed of the canal as well as the river of the canal is at the same level. There is no difference. Okay, in that case we can provide two types of cross drainage work. One is the level crossing and another one is the inlet or outlet. So when we will tell it as a level crossing or when we will tell it as a inlet or outlet, we will discuss later. So here you can see this is a canal and this is a river. So in that case यहाँ पर जो कैनल का फ्लो होता है, यहाँ पर रिवर आता है, तो ये दोनों कई जगह पर आके यहाँ पर इंटरमिक्स्ड हो जाते हैं. तो हमको ये नहीं चाहिए. हम इस कैनल को यहाँ से गुजरता हुआ यहाँ पर फ्लो करवाना चाहते हैं विदाउट चेंजिंग और विदाउट इंटरमिक्सिंग द वाटर ऑफ द स्ट्रीम विद द कैनल. हम यहाँ पर कोई इंटरमिक्स नहीं करना चाहते हैं और इस जो कैनाल है, यहाँ पर जो कैनाल है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं over the stream, okay, or river. So what type of cross drainage work we should provide it, that depends upon the bed level of the canal as well as bed level of the stream. मान लीजिए यहाँ पर इसका जो बेड लेवल है 120 मीटर डेप्थ पर है फ्रॉम दी सी लेवल और फ्रॉम दी सी सरफेस. हियर द कैनल इज एट ए हाइट ऑफ 110 meter from the sea surface. That means the canal is at a higher lower depth of, मतलब इसका जो RL है 110 है, इसका RL है 100. तो ये हायर लेवल पर आता है आज कंपेयर टू द स्ट्रीम. दैट मीन स्ट्रीम के ओवर और स्ट्रीम के ऊपर से कैनल पास करेगा. तो उसी टाइप को स्ट्रक्चर को बोलते हैं एक्वेडक्ट. ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी शुड प्रोवाइड और व्हाट टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क दैट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर दैट दिस कैनल कैन इजीली पास ओवर द स्ट्रीम. चलिए हम लोग पहले केस को डिस्कशन करते हैं जब कैनल ड्रेनेज के ऊपर से पास करता हुआ जाता है. दैट मीन व्हेन the canal passes over the drainage. So two type of structure or cross drainage work can be possible, that is aqueduct and another one is the siphon aqueduct. Okay, so what do you mean by that aqueduct? So let us discuss. So aqueduct is the hydraulic structure in which the irrigation canal is taken over the drainage such as river or stream, and this structure is suitable when the bed level of the canal is above the highest flood level of the drainage. चलिए आपको यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में बता दिया जाता है. तो व्हाट इज़ द हाईएस्ट फ्लड लेवल एंड व्हाट इज़ द स्ट्रीम बेड लेवल. देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ों का हम डिस्कशन कर रहे हैं. एक तो है कैनाल, दूसरा जो है नेचुरल स्ट्रीम और रिवर. सो रिवर का कुछ डेप्थ होगा तो उसको बोला जाता है बेड. ठीक है, स्ट्रीम बेड लेवल. 1 मिनट. और रिवर का जो मैक्सिमम हाइट पे होगा, कुछ मैक्सिमम हाइट होगा रिवर का जहाँ पर फ्लो करता है क्या रिवर का जो वाटर फ्लो करता है, यहाँ पर जो मैक्सिमम डेप्थ होता है. ठीक है, तो इसी को बोला जाता है हाईएस्ट फ्लड लेवल. ओके, और हाई फ्लड लेवल. वैसे ही कैनाल का जो मैक्सिमम लेवल होगा वाटर का, तो उसको बोला जाता है फुल्ली सप्लाई लेवल FSL. और कैनाल का जो बेड लेवल होता है उसको बोला जाता है CBL.
वैसे SBL और CBL को आप याद नहीं भी रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट you have to know about the HFL as well as FSL. These are very very important terms. Okay, highest flood level is related to the rivers, and fully supply level is related to the canals. So when the canal bed level is at a highest level over the stream bed level, यहाँ पर जो लिखा गया है आप पहले आप पढ़ लीजिए. दिस स्ट्रक्चर इज सुइटेबल व्हेन बेड लेवल ऑफ द कैनाल इज अबव द हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ द ड्रेनेज. ठीक है, मतलब यहाँ पर जो कैनाल का जो बेड लेवल है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है. ठीक है, तो कैनाल अगर यहाँ से, कैनाल का बेड लेवल अगर यहाँ से शुरू होता है तो वहाँ पर हम एक्वेडक्ट प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, यहाँ पर रिवर है और कैनाल का जो बेड लेवल है यहाँ पर शुरू होता है, और फ्लड लेवल जो मैक्सिमम फुल्ली सप्लाई लेवल है यहाँ पर है. तो हम लोग कैनाल को इसके ऊपर से एक्वेडक्ट के थ्रू लेके जाएंगे. ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बताया है. पहले बात तो है यहाँ पर ड्रेनेज के ऊपर क्या प्रोवाइड किया गया है, कैनाल. ठीक है, और ड्रेनेज का जो मैक्सिमम लेवल है, यहाँ पर जो लेवल है कैनाल के बेड लेवल से, ये है होता है कैनाल का बेड लेवल. दिस इज़ द स्ट्रीम बेड लेवल, दिस इज़ द हाईएस्ट फ्लड लेवल. सो यहाँ पर हाईएस्ट फ्लड लेवल से लेकर कैनाल का बेड लेवल तक कुछ डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को बोला जाता है वर्टिकल डिस्टेंस. ठीक है, अगर यही वर्टिकल डिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है तो डेफिनेटली दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द एक्वेडक्ट. ओके, दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ एक्वेडक्ट. ये देख रहे हैं आप, दिस इज द कैनाल. ओके, इट इज फ्लोइंग ओवर द रिवर. So here some vertical distance is vertical distance from the, this is the highest flood level. Okay, this is the fully supply level और FSL. ठीक है, और इसका जो डेप्थ होगा यहाँ पर से लेकर कैनाल का जो नीचे पोर्शन है, दैट इज जो भी ब्रिज का जो नीचे का पोर्शन है, तो वहाँ पर जो डेप्थ होगा तो इसको बोला जाता है कैनाल बेड लेवल, और इसका जो रिवर का जो डेप्थ होगा उसको बोला जाता है स्ट्रीम बेड लेवल. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट फ्लड लेवल से कैनाल का बेड लेवल तक जो कुछ डिस्टेंस यहाँ पर दिखाया गया है, दिस इज नोन एज द वर्टिकल क्लियरेंस. ठीक है, इफ दैट वर्टिकल क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड देन दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज द एक्वेडक्ट. इफ the vertical clearance is not provided, that mean when the highest flood level reaches the canal bed or touches the canal bed, then in that case this type of structure will be known as siphon aqueduct. ठीक है, that mean यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये जो वर्टिकल क्लियरेंस है यहाँ पर भी पानी आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर पानी आ जाएगा तो पानी टच करेगा क्या जो ब्रिज का जो यहाँ पर नीचे का पोर्शन है, दिस पोर्शन को टच करेगा पानी. सो इन दैट केस दैट इज नोन एज द साइफोन एक्वेडक्ट. यहाँ पर कुछ मैंने फिगर दिखाया है जो एक्वेडक्ट का, आप देख सकते हैं. ठीक है, दिस इज द वर्टिकल क्लियरेंस विच इज प्रोवाइडेड हियर. दिस इज वर्टिकल clearance, this is the highest floor level, this is the fully supply level. Okay. Here also you can see the different types of aqueduct and inspection road, walking road which is also provided, and this is the canal, this is the stream. Now we will discuss about the siphon aqueduct. So already I have told you about the siphon aqueduct. So let us discuss about the definition of siphon aqueduct. So in an hydraulic structure where the canal is taken over the drainage, but the drainage water cannot pass below the canal, it flows under the siphonic action. So it is known as the siphon aqueduct.
This structure is suitable when the bed level of the canal is below the highest flood level. ठीक है. सो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो ड्रेनेज का जो हाईएस्ट फ्लो लेवल होगा कैनाल की बेड को टच कर सकता है या उससे भी ऊपर जा सकता है. दैट मीन व्हेन जो वर्टिकल क्लियरेंस मैंने पहले के पिक्चर में आपको दिखाया था, वो तो वर्टिकल क्लियरेंस तो फुल अप हो जाएगा पानी से, उसके ऊपर भी जा सकता है हाईएस्ट फ्लो लेवल ऑफ द ड्रेनेज. सो इन दैट केस दिट इज नोन एज द साइफन एक्वेडक्ट. यहाँ पर कैनाल का जो बेड लेवल होगा स्ट्रीम के बेड लेवल से ऊपर ही रहेगा. ठीक है, स्ट्रीम के बेड लेवल से क्या होगा, ऊपर ही रहेगा. तो तभी हम इस टाइप का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं. मतलब कैनाल को ऊपर स्ट्रीम के ऊपर ले जाने के लिए कैनाल क्या होगा, स्ट्रीम से ऊपर रहना पड़ेगा. मतलब कैनाल को स्ट्रीम से ऊपर रहना पड़ेगा, तभी तो आप उसको लेके जा सकते हैं ड्रेनेज के ऊपर और रिवर के ऊपर. सो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ siphon aqueduct in which you can see the river water is touching the bed of the canal. Here actually the diagram is not shown properly, but you can see it. This river water is touching the bed of the canal and it may rises above the bed of the canal. This is the highest floor level. Okay, this is canal. Now here also you can see the figure which was given in your book. Here the canal is above the stream and stream is flowing in this direction, and this is the cross section of the canal, and this is the inspection drone which I have been showed you before that. Okay, चलिए. सो नेक्स्ट हम आते हैं टाइप 2 में. जब रिवर ऊपर रहेगा और कैनाल क्या होगा, नीचे रहेगा. दैट मीन व्हेन ड्रेनेज passes ओवर द इरिगेशन कैनाल. सो दैट टाइम टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी पॉसिबल, दैट इज सुपर पैसेज और साइफोन सुपर पैसेज. इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ एक्वेडक्ट एंड साइफोन एक्वेडक्ट. सो लेट अस डिस्कस. So what is the super passage? The hydraulic structure in which the drainage is taken over the irrigation canal is known as the super passage. This structure is suitable when the bed level of the drainage is above the full supply level of the canal. The water of the canal passes clearly below the drainage. तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर आप जो देख पा रहे, दैट मीन दिस रिवर इज एट ए हायर लेवल आज कंपेयर टू द कैनल बेड लेवल. दैट मीन द कैनल बेड लेवल इज बिलो द हाईएस्ट फ्लोर लेवल ऑफ द स्ट्रीम और रिवर. ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे, मतलब यहाँ पर देखिए कैनल फ्लो कर रहा है अंडर द रिवर. सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज द सुपर पैसेज. तो यहाँ पर भी वर्टिकल क्लियरेंस कुछ प्रोवाइड किया गया है सुपर पैसेज में. ठीक है, सो दिस वर्टिकल क्लियरेंस विल बी फिल्ड बाय द वाटर ऑफ द कैनाल और फुल सप्लाई लेवल जो FSL होता है कैनाल का, तो यहाँ जो ब्रिज का जो नीचे का पोर्शन है इसको टच करेगा और इसके ऊपर भी आ जाएगा. तो उस टाइप का जो कंडीशन रहेगा तो उसको बोला जाता है साइफोन सुपर पैसेज. यहाँ पर भी देख सकते हैं मैंने एक्चुअली यहाँ पर ये जो प्रोवाइड किया यहाँ पर किया गया है, दिस इज़ द अंडरग्राउंड रोड, बट हियर ऑल्सो कैनल्स कैन बी प्रोवाइडेड अंडर द हाईएस्ट फ्लोड लेवल ऑफ द रिवर. ठीक है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर प्रोवाइड किया जाता है, मतलब यहाँ पर अगर कैनाल प्रोवाइड हम लोग करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज द सुपर पैसेज. यहाँ पर देखिए द स्ट्रीम इज अबव द कैनाल. ठीक है, कैनाल के ऊपर स्ट्रीम है और हाईएस्ट फ्लोर लेवल यहाँ पर है, तो इनके अंदर कुछ वर्टिकल क्लियरेंस यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है. यहाँ पर वर्टिकल क्लियरेंस, दिस इज वर्टिकल
clearance. So this vertical clearance if provided, then that type of structure is known as super passage. Otherwise it is known as the siphon super passage. अगर ये vertical clearance यहाँ पर नहीं होगा तो क्या होगा, FSL will touch the stream bed or it may rises above the stream bed. So in that case this is known as the siphon super passage. Here you can see this is canal. Canal is flowing in this direction and river is flowing in this direction. So this is super passage. So vertical clearance must be there while the canal is flowing under the stream. Otherwise it is known as the siphon super passage. So siphon super passage. So the hydraulic structure in which the drainage is taken over the irrigation canal, but the canal water passes, and this type of structure is suitable when the bed level of the drainage is below the full supply level of the canal. तो वही चीज़ लिखा है जो मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं. Here तो no vertical clearance is provided. This fully supply level of the canal is rising above the stream bed. ठीक है. Now come to the third condition, that is when drainage and canal, मतलब अभी जो हम दो कंडीशंस बढ़ रहे थे उसमें हमने आपको बताया either canal can be at a higher level than the stream or river or drainage, or canal can be at a lower level than the stream or river or drainage. But when the drainage as well as the canal is at a same level, then in that case what will happen? The two type of cross drainage work can be possible. One is level crossing and another one is inlet and outlet. So let us discuss what is the level crossing. So when the bed level of the canal and the stream are approximately the same and the quality of the water in the canal and stream is not much different, जो कि मैंने आपको अभी बताया बेड लेवल क्या होगा, सेम होगा. The cross drainage work constructed is called as the level crossing where the water of the canal and stream is allowed to mix. मतलब अभी जो हम पहले के दो कंडीशंस पढ़ रहे थे तो उसमें कैनाल को वाटर और जो रिवर को वाटर इंटरमिक्स्ड नहीं हो रहा था, मगर अभी क्या होगा, मिक्स होगा. मिक्स होने से प्रॉब्लम क्या है, मतलब एक्चुअली द प्लांट रिक्वायर्स मैनी मिनरल्स इन, सो कैनल्स में हम लोग जो वाटर छोड़ते हैं that is some pure water, but river water is contaminated due to industrialization or many more reasons. So अगर कैनल का वाटर रिवर के वाटर से इंटरमिक्स्ड हो जाता है तो in that case many problems will be arises. But bed condition is the geographical factor depending upon which we are selecting the cross drainage work. अगर बेड लेवल सेम होता है तो हमको मजबूरन लेवल क्रॉसिंग और इनलेट और आउटलेट प्रोवाइड करना पड़ेगा. In that case we cannot provide aqueduct or super passage like this. But if you are providing aqueduct or super passage, then in that case it will be very much effective than this level crossing or inlet or outlet, because if stream water is pure or not contaminated, then in that case no problem will be arises. But if the stream water or river water is contaminated, then in that case it is very much dangerous for the plant, or plant what if a plant takes that water, then the entire crops will be destroyed due to the poison present within the water. So we have to take more consideration, give more consideration towards this concept. So anyhow, however, level crossing we should here discuss. So with the help of regulators both in the canals and stream, water is disposed through the canal and stream in required quantity. चलिए लेवल क्रॉसिंग को समझते हैं. तीनों प्रकार के हम अरेंजमेंट यहाँ पर करते हैं, क्रेस्ट वॉल, स्ट्रीम रेगुलेटर और कैनाल रेगुलेटर्स. यहाँ पर देख सकते हैं जब कैनाल
here canal and river water both are intermixing. आपको ये थोड़ा लगेगा कि यहाँ पर रिवर वाटर कैनल के ऊपर से जा रहा है, मगर नहीं. यहाँ पर एक हमने स्ट्रक्चर बनाया है, दिस स्ट्रक्चर्स and river water and canal water is mixing here. Okay, so actually यहाँ पर क्या होता है, देखिए उस चीज़ को हम समझते हैं इधर. यहाँ पर क्या होता है, कैनल यहाँ पर फ्लो करता है इस डायरेक्शंस में और रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो करता है. तो कैनल जो फ्लो करता है और रिवर वाटर यहाँ पर इंटरमिक्स्ड होता है, तो क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आता है. देखिए कैनल और रिवर वाटर बोथ मिक्सिंग होने के कारण यहाँ पर डिस्चार्ज ऑफ द वाटर राइजेस. सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल द डिस्चार्ज ऑफ द वाटर और फ्लो ऑफ द वाटर वी आर प्रोवाइडिंग दिस रेगुलेटर्स और क्रॉस रेगुलेटर्स. लाइक दैट द ड्रेनेज वाटर or the discharge of the drainage may rises due to the mixing of the canal water. That is why here also regulators is also provided. Okay, so दो प्रकार से रेगुलेटर हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं और रेगुलेटर प्रोवाइड करने का कारण यही है कि हम डिस्चार्ज को कंट्रोल करना चाहते हैं. ठीक है, सो क्रॉस रेगुलेटर्स आर हियर आल्सो, रेगुलेटर्स इज आल्सो प्रोवाइडेड. सो क्रेस्ट वाल कभी कभार हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ नथिंग बट वन टाइप ऑफ बैरेज और वन टाइप ऑफ वेयर ओवर विच द ड्रेनेज वाटर कैन बी फ्लोज. तो क्रेस्ट वाल मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है चीज़. यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज़ नोन एज द क्रेस्ट वाल. यहाँ पर पानी क्या होगा, इसके ऊपर से जा सकता है. ठीक है, जब पानी का लेवल ज़्यादा हाई हो जाएगा तो इसके ऊपर से जा सकता है, वरना यहाँ पर नहीं जाएगा. तो फ्लोड कंट्रोल में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और पानी को कुछ हद तक यहाँ पर स्टोरेज करके रखता है, जिसको हम अदर पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको. ठीक है, सो तीनों प्रकार के स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं. एक तो है जो क्रेस्ट वाल, दूसरा जो है स्ट्रीम रेगुलेटर और कैनाल रेगुलेटर. ठीक है, तीनों चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करते हैं. चलिए, दिस इज वन टाइप ऑफ क्रेस्ट वाल. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इनलेट एंड आउटलेट. चलिए, व्हाट इज द इनलेट एंड आउटलेट? व्हेन इरिगेशन कैनाल meets a small stream or drain at same level, drain is allowed to enter the canal as inlet. At some distance from this inlet point, a part of water is allowed to drain as outlet, which eventually meets the original stream. Stone bedding is required at the inlet and outlet. The bed and the banks between the inlet and outlet are also protected by the stone bedding. This type of cross drainage work is called as inlet and outlet. चलिए इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं क्या लिखा है यहाँ पर. देखिए देखिए, हाँ, this stream is flowing in this directions and the canal is flowing in this direction, that is at the same level. That is why here canal water and stream water is mixing. चलिए इसको हम क्या करते हैं, हमको यहाँ पर कैनाल को इस डायरेक्शन में फ्लो करवाना है और स्ट्रीम को इस डायरेक्शन में फ्लो करवाना है और कैनाल को इस डायरेक्शन में फ्लो करवाना है. तो क्या करेंगे, स्ट्रीम वाटर इज कमिंग लाइक दिस. हियर स्ट्रीम वाटर इज कमिंग लाइक दिस. सो यहाँ पर हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, एक आउटलेट प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, यहाँ पर इन होता है, इनलेट है, और यहाँ पर एक आउटलेट हम प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पर से जाके यहाँ पर मिक्स्ड हो जाएगा. ठीक है, मतलब स्ट्रीम क्या होगा, स्ट्रीम इस डायरेक्शन में, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, डॉटेड लाइन जो है, स्ट्रीम यहाँ पर से आकर यहाँ पर से निकल जाता है. और कैनल क्या होता है, ऑटोमेटिकली इसका जो फ्लो होता है वो चेंज नहीं होता है. ठीक है, और वैसे तो आउटलेट प्रोवाइड करने के कारण ये फ्लोड रेगुलेटर के तरह यूज़ होता है और डिस्चार्ज इसमें कंट्रोल रहता है. ठीक है, सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ इनलेट एंड आउटलेट.
So here you can see one inlet and outlet. Okay, here it is flowing like this. Okay, this is inlet and outlet point. Now we will discuss about the different factors that affects the selection of cross drainage work. मतलब क्रॉस ड्रेनेज वर्क को हम कैसे सिलेक्शन करते हैं, हाउ वी आर सिलेक्टिंग द क्रॉस ड्रेनेज वर्क and what are the factors that affects the selection of cross drainage work. So these are the various factors which affects the selection of cross drainage work, that is relative bed level, availability of suitable foundation, economical consideration, discharge of the drainage, construction problems. So let us discuss one by one. दैट इज़ रिलेटिव बेड लेवल. जैसे कि हमने पहले के केस में डिस्कशन किया कि बेड लेवल ऊपर होने के कारण एक्विडेक्ट बन जाता है. बेड लेवल कैनल का अगर नीचे होता है तो सुपर पैसेज हो जाता है. बेड लेवल अगर स्ट्रीम का और कैनल का बहुत सिमिलर और सेम लेवल पे होता है तो वहाँ पर लेवल क्रॉसिंग होता है और इनलेट और आउटलेट का कंसेप्ट आता है. तो रिलेटिव बेड लेवल के हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं व्हिच क्रॉस ड्रेनेज वर्क शुड बी प्रोवाइडेड. अगर हमको एक्वेडक्ट प्रोवाइड करना है देन इन दैट केस द कैनल बेड लेवल शुड बी एट ए हायर लेवल दैन द HFL, दैट इज़ हाई फ्लोड लेवल. ओके, जब हम सिलेक्शन करते हैं बेड लेवल के हिसाब से तो कुछ रिकमेंडेशंस को हमको मानना चाहिए, जैसे कि द क्रॉसिंग शुड बी एट राइट एंगल टू ईच अदर. जब भी हम कैनाल को ऊपर से लेके जाते हैं स्ट्रीम के ऊपर से तो दैट क्रॉसिंग शुड बी 90 डिग्री और राइट एंगल ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. वेल डिफाइंड क्रॉस सेक्शंस ऑफ द रिवर और ड्रेनेज शुड बी अवेलेबल. जहाँ पर भी हम एक क्रॉस ड्रेनेज वर्क का काम करेंगे सो वहाँ पर क्रॉस सेक्शन इस मतलब बेहतर होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए और क्रॉस सेक्शन उसी टाइप से होना चाहिए जैसे कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क को कोई मतलब प्रोवाइड करने में कोई ट्रबल ना आए और कोई प्रॉब्लम नहीं आए. ठीक है. एट द क्रॉसिंग पॉइंट द ड्रेनेज शुड बी स्ट्रेट फॉर ए कंसिडरेबल लेंथ. ठीक है, ये तो हमने अभी डिस्कशन किया. द विड्थ ऑफ द ड्रेनेज शुड बी नैरो एज फार एज पॉसिबल. मतलब जहाँ पर भी हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क बना रहे हैं तो वहाँ पर विड्थ थोड़ा नैरो होगा तो बेहतर रहेगा. ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स in which we can consider while selecting the cross drainage work depending upon the relative bed level. Now come to the availability of suitable foundation. So जब भी हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करते हैं तो आपने देखा कि हम पायर्स प्रोवाइड करते हैं तो पायर फाउंडेशन नॉर्मली हम प्रोवाइड करते हैं तो उस पायर फाउंडेशन के लिए सुइटेबल जो सॉइल का जो कंडीशंस होना चाहिए वो सूटेबल होना चाहिए. ठीक है, तो हम लोग उसको चेक कर सकते हैं बाय बोरिंग टेस्ट, फाउंडेशन सूटेबल है कि नहीं. अगर फाउंडेशन वहाँ पर सूटेबल नहीं है और मिट्टी ख़राब है और मिट्टी का जो स्ट्रेंथ है बहुत कम है तो इन दैट केस वी कैन नॉट प्रोवाइड द क्रॉस ड्रेनेज वर्क. वी हैव टू सिलेक्ट अदर विड्थ और अदर विड्थ ऑफ द स्ट्रीम. ठीक है. सो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस भी होता है जहाँ पर मतलब जो भी पोजीशन और जो भी साइट का कंडीशन हमको इकोनॉमिक लगता है मतलब वहाँ पर कम खर्चा आएगा तो उस जगह पर प्रोवाइड करना बेहतर रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर. जहाँ पर वैसे भी अगर बहुत सारा सुविधा हो मगर इकोनॉमिकली इट इज़ वेरी वेरी लार्ज देन इन दैट केस वी शुड नॉट प्रोवाइड. दिस फैक्टर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज ऑफ द ड्रेनेज. देखिए जहाँ पर नदी का जो रिवर का जो फ्लो अगर ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करना और काम करना बहुत डिफ़िकल्टीज रहेगा. तो पर्टिकुलरली तो जहाँ पर डिस्चार्ज थोड़ा बढ़ जाता है रेनी सीजन में तो वहाँ पर अगर हम प्रोवाइड ना करके जहाँ पर डिस्चार्ज थोड़ा कम रहता है वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे देन इट विल बी बेटर.
ठीक है। सो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है, प्रैक्टिकली द डिस्चार्ज ऑफ द ड्रेनेज इज वेरी अनसर्टन इन रेनी सीजन, सो द स्ट्रक्चर शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड सो दैट इट मे नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द अनएक्सपेक्टेड हैवी डिस्चार्ज ऑफ द रिवर और ड्रेनेज। सो जहाँ पर हैवी डिस्चार्ज आता है तो वहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि हाई फ्लोर लेवल कितना दूर तक जाता है, जो कि उससे ज़्यादा हमको हाइट प्रोवाइड करना पड़ेगा आइदर कैनाल का और रिवर। ठीक है, तो डिपेंड्स अपॉन द डिस्चार्ज ऑफ द ड्रेनेज while selecting the aqueduct, siphon aqueduct. Now construction problems. So different types of construction problems may arise at the site, such as subsoil, water, construction materials, communication. So ये सब प्रॉब्लम तो आता ही है। जहाँ पर ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होगा, अगर वहाँ साइट कंडीशन कुछ ऐसा रहेगा तो दैट विल बी suitable. So these are the ideal conditions and these are different various factors which affects the selection of the क्रॉस ड्रेनेज वर्क। तो कौन सा क्रॉस ड्रेनेज वर्क अच्छा रहेगा, तो यही सब फैक्टर्स को लेकर हम सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज के क्लास में आपको टोटल क्रॉस ड्रेनेज वर्क के बारे में कुछ मतलब लगभग कुछ अच्छा आइडिया आज गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन रिगार्डिंग दैट यू कैन पोस्ट कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू।